I am with Mr. Ahmad Zia Massoud, the ex-Vice President of Afghanistan. He's here for the past 2 days with a very important and powerful delegation of Afghan leadership. This delegation had meetings with almost every important person in Pakistan's civil military leadership. I want to understand from him, and all these meetings have taken place at a time when Taliban have taken control in Kabul. So I would like to understand from Mr. Ahmad Zia Massoud the nature of the meetings over here and what is the future of Afghanistan in his view at this time. A very warm welcome to you on behalf of the Pakistani people and the viewership of 92 News. Thank you very much. During the 30 or 40 years before, it was a good relationship between Pakistan and Afghanistan. Therefore, the role of Pakistan is very important to stabilize Afghanistan and to bring peace in Afghanistan. We didn't know how Taliban progressed to take over political power in Kabul, but it was amazing that all the people of Afghanistan considered that our army, they were very strong. But unfortunately, the leadership, political leadership, they were very weak. Therefore, army also, when took some order from political leadership, they couldn't do very well against Taliban. They couldn't fight very well because it was a kind of the most part of the people of Afghanistan, they believe there were a kind of compromise between Mr. Ghani and Taliban, that Taliban should take over political power because of the issue of ethnicity. Ashraf Ghani had already lost his legitimacy between the people of Afghanistan. Can you tell us what was the nature of the meetings with the military and civil leadership in Pakistan? Yeah, it was very constructive that we met with official people in here in Pakistan. We said all the situation, the present situation of Afghanistan that is going on now, today. Also the war and the current situation of Afghanistan. We asked them that they should have a good role in this very critical time and sensitive time. Pakistan should play his role for stability and to bring peace in Afghanistan. Over the past several years, Pakistan has worked very hard for a peaceful, stable and all-inclusive government in Afghanistan. Do you think now, when Taliban have taken over, it is still possible to have an inclusive government in Kabul? Why no? The situation is very perfect now, very suitable. Without an inclusive government in Kabul, it's not possible to bring peace in Afghanistan, because the rule of one group, one ethnic group, is not acceptable for the people of Afghanistan. Therefore, the only solution, political solution in Afghanistan, is that we should have an inclusive government and participation of all ethnic groups and political structure. That all ethnic groups should see their presence in political structure. Today, we saw a tweet and a story from Amrullah Saleh, the ex-director and head of NDS, who says he's going to launch a resistance from Panjshir Valley. Do you think it's a serious challenge, or this is... No, Amrullah Saleh now he's nothing. Amrullah Saleh, all the Panjshiri, they are against Amrullah Saleh. Oh. Because Amrullah Saleh was very near to Ashraf Ghani. And all the time Amrullah Saleh supported Ashraf Ghani in the cost of the will of the people of Afghanistan, particularly Panjshiri people. They are nothing now. Very interesting. Yeah. Today, a few hours ago, President Biden criticized and condemned the Afghan leadership. He said he expected better from them. Yeah. Why do you think Ashraf Ghani ran off and fled to Central Asia? Because Ashraf Ghani didn't work properly in Afghanistan. In the field of economy, he was failed. In the field of social stability, he was failed. He couldn't bring all the people together. National unity has damaged a lot in the presence of Mr. Ghani. In the meantime, he was a very crafted person. Therefore, he was a lawyer. When he talked to Mr. Biden, he said that he will resist against any insurgency. But finally, he escaped from Afghanistan. Today we have also seen
that Afghan Taliban have started allowing women to appear on the streets with Tolo TV reporters standing without any face cover or any hijab on the streets and reporting from there. Are you hopeful for the role of the woman in Afghanistan? You know that in Afghanistan now, new generation, the women, girls, they are thinking completely differently from the past 20 years. But Taliban consider that these women of Afghanistan, they should be the same like 20 years before. But now, no. They are very revolutionary, our women. They would like to have their own political right. Therefore, they demonstrated that they would like to show to the Taliban that they want their own rights from any government. How do you see the role of regional powers? You have been ambassador to Russia, Russian Federation after 9/11. Yeah. How do you see the role of Russia, China, Iran in this Afghanistan future? I think all our neighbors, they have constructive role in Afghanistan. Russia also, they want that peace should come to Afghanistan because the security situation of all Central Asia government, if peace don't come in Afghanistan, will be deteriorated. Therefore, Russia and China also, for economic development, is very important for them that peace should be established, should come to Afghanistan. Afghanistan has a lot of financial problems and challenges, money problem. United States was giving a lot of money before. How do you see a new Afghanistan will be able to manage its finances, the money? But without the cooperation of big power, particularly America, it's not possible that we should do something in the field of economy. Our financial issues are related to the support of United States. Therefore, we hope that the new inclusive government, not the government of Taliban, should be supported by the United States. When you left Kabul 3 days ago, Taliban were outside Kabul. Now Taliban are inside Kabul, they control the whole country. Do you still expect a transitional or interim government to come into existence? I think it's very important that a new administration should take over all the issues in Kabul because now all the issue is completely mess in Kabul. There is no administration, there is no economy, there is no social order, because we are living now in a kind of political vacuum in Kabul. Therefore, a kind of interim government that till we reach to the inclusive government, I think it will be better now. You have not only been the Vice President of Afghanistan, you're also the brother of Ahmad Shah Massoud. The world knows you. There's a lot of respect for Ahmad Shah Massoud and for you in the Western world. What do you think the international community should do at this moment? At this moment, the international community should make a lot of efforts that we should come to Afghanistan and we should do something that a kind of political structure should be established in Afghanistan, that all ethnic group, all the social group should be content, should be happy. This is the effort of international community. Through international community, we will be able to bring peace in Afghanistan. Without that, it's not possible. And what are your expectations from Islamabad? Islamabad has a big role in Afghanistan. We hope that Islamabad play his constructive role to bring peace and stability in Afghanistan, because stability and security in Afghanistan directly affect the situation of Pakistan also. A progressive Afghanistan, it means that a progressive Pakistan. If Pakistan has a failed state in his neighboring, then will affect all the situation here. For example, now 6 million people are living in Kabul. Half of them would like to take refuge in different countries, particularly Pakistan. You consider if 3 million people want to come to Pakistan, how your economy will be affected by those refugees? Therefore, this is very important that we should do something that peace come in Afghanistan, and a new chapter in relation between Pakistan and Afghanistan should be created, that all misunderstanding should be removed,
and we should go toward economic development, and we should do our effort to bring peace, and also we should work together in security issues. During your meetings here in Islamabad and Pindi, do you think the Pakistani leadership is aware of these challenges? Yeah, I think that we are very hopeful. But whatever we heard from the senior official in Islamabad, yeah, our impression is very good. I hope that through the cooperation of Pakistan government, we can do something that the stability and peace come to Afghanistan. So, in Pakistan, there is a lot of concern about India's negative role from Afghanistan and Ashraf Ghani government. What do you think will be the future role of India in Afghanistan? I think India has a very strong economy. Therefore, Afghanistan also it was a poor country. The previous relationship that was existed between India and Afghanistan, that we would like to take advantages from this, from the strong economy that India has. All investment of India in different economic infrastructure was good, but we didn't want that India use soil Afghanistan or the people of Afghanistan against the Pakistan or against the security of Pakistan. We don't allow any country to do that. Yeah, our relationship with Pakistan is very important comparing to India, because we have 2,400 kilometers border. Our religious relationship, cultural relationship, this is very important. Therefore, we prefer that Afghanistan and Pakistan should work together, that we should pave the ground for economic development, because our people, they are very poor, it's very sensitive that we should work together. Thank you so much. नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले जो इंटरव्यू आपने देखा ब्रेक से पहले अहमद ज़िया मसूद साहब के साथ, उसकी अहमियत के बारे में चंद अल्फाज ये कह दूं कि अहमद ज़िया मसूद साहब अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इससे भी बढ़ के उनकी अहमियत ये है कि वो पंजशेर वैली के फ़ाइटर जनाब अहमद शाह मसूद के भाई हैं और मशहूर अफ़गान लीडर बुरहानुद्दीन रब्बानी के वो दामाद हैं। और ये नॉर्दर्न अलायंस, ये जो उस डेलीगेशन का हिस्सा है इस वक्त जो अभी भी इस्लामाबाद में है, और ये वो नॉर्दर्न अलायंस का डेलीगेशन है जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एंटी तालिबान जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है अफ़गानिस्तान की, ये उसका हिस्सा है। और आपने उनको सुना कि जब उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि अमरुल्लाह सालेह जो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुखालिफ हैं, वो कहते हैं कि मैं पंजशेर वैली से अब एक तहरीक चलाऊँगा, मैं रेजिस्टेंस का हिस्सा हूँगा, तो उन्होंने इसको डिसमिस किया। उन्होंने कहा कि अब अमरुल्लाह सालेह की कोई रेलेवेंस रही नहीं है पंजशेर वैली के अंदर। हालांकि जो मेन लीडरशिप है पंजशेर वैली की, वो आपके सामने अहमद ज़िया मसूद साहब पंजशेर वैली की मेन लीडरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो डेलीगेशन था वो उस वक्त आया था काबुल में जब अभी अफ़गान तालिबान की हुकूमत नहीं थी। डेलीगेशन इस्लामाबाद में था। जब वहाँ पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई, डेलीगेशन देख रहा है कि वो काबुल वापस जाएगा या पाकिस्तान में कुछ रुकेगा या फिर दुबई में जाके सूरत हाल को देखेगा। यहीं से हम बात का आगाज़ करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के एम्बेसडर जो पॉइंट मैन है पाकिस्तान के काबुल में, जनाब मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ हैं। मंसूर अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। एम्बेसडर साहब, आप ग्राउंड के ऊपर हैं, आप काबुल में हैं, दुनिया भर की निगाहें काबुल को देख रही हैं, पाकिस्तान भर के लोग समझना चाहते हैं कि इस वक्त काबुल की सूरत हाल है क्या। जो हमें ये पता चला है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब तो यूएई पहुंच चुके हैं, वहाँ गालिबन उन्होंने पनाह ले ली है। हामिद कारज़ाई साहब के साथ अफगान डेलीगेशंस की मुलाकातें हो रही हैं। मुल्ला बरादर जो हैं वो कंधार पहुँच चुके हैं। इस वक्त हुकूमत की सिचुएशन है क्या, हुकूमत किसकी है काबुल में? देखिए, इस वक्त हालात ये हैं कि आज से 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल यहाँ पे जा चुकी है और अभी नई हुकूमत यहाँ पे कोई आई नहीं है। तालिबान जो है गुज़िश्ता हुकूमत के जाने के बाद
अफ़गानिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, काबुल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान ने किसी हुकूमत की फॉर्मेशन का ऐलान नहीं किया। जिस तरह कि आपने बताया कि उनके लीडर्स जो हैं मुख्तलिफ तरफ से वो काबुल की तरफ या अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहे हैं, कंधार पहुंच चुके हैं मुल्ला ब्रदर, और दूसरे लीडरान भी काबुल की तरफ आ रहे हैं या कुछ पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी बाज़ाब्ता हुकूमत का ऐलान नहीं किया गया। ज़्यादातर फोकस यहाँ काबुल में इस वक्त है कि एवैक्यूएशन किस तरह होगी, जो एवैक्यूएशन के लिए वेस्टर्न एम्बेसीज़ इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, अपने नेशनल्स को निकाल रही हैं, कुछ अफ़गान नेशनल्स को निकालने का अमल भी जारी है। इस सूरत हाल में मैंने कल यहाँ पहुँचने के बाद आज मैंने रूस के और चीन के सुफरा से मुलाकात की है, मेरी बात हुई तुर्की के एम्बेसडर से, और यूएन की जो यूनामा की एम्बेसडर हैं डेबरा लियोन्स, उनसे भी मैंने बातचीत की। और कोशिश हमारी ये है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में कि इस ट्रांजिशन को किसी तरह मैनेज किया जाए। मैनेज करने से मतलब ये है कि इसमें हालात जो हैं बदअमनी की तरफ ना जाएं और किसी स्टेबल ट्रांजिशन के ज़रिए फिर परमानेंट सेटअप जो है अफ़गानिस्तान का सियासी परमानेंट सेटअप इवॉल्व करने में मदद की जाए। एम्बेसडर मंसूर खान, आप वहाँ मौजूद हैं काबुल के अंदर, और हमें इंटरनेशनल ज़राए से मसलसल पता चल रहा है कि अफ़गान तालिबान तो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी को यहाँ से जाने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मुख्तलिफ एम्बेसीज़ हैं, वेस्टर्न एम्बेसीज़ हैं, सफारतकार हैं, ये क्यों पैनिक में यहाँ से निकलना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये बात ठीक है कि यहाँ तालिबान ने अपनी मुख्तलिफ अनाउंसमेंट्स में गुज़िश्ता 2-3-4 दिनों के अंदर ये बारहा अनाउंस किया है कि वो हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, गारंटी करते हैं और लोगों को निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही तालिबान के आने का यहाँ पे की ख़बरें आनी शुरू हुई थी, उस दिन से ही जो वेस्टर्न एम्बेसीज़ हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और बहुत से अफ़गान्स जो कि ग़ालिबन तालिबान के आने से उनके प्रीवियस रिजीम की वजह से ख़ाइफ़ थे, उन्होंने कोशिश की कि वो इस मौके पर अफ़गानिस्तान को छोड़ दें। अब चूँकि ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ, इवैक्यूएशन की कोशिश भी काफ़ी मिसमैनेज हुई। एयरपोर्ट अमेरिकन्स ने और फॉरेन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ ने संभाल लिया, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे दाखिले के लिए लोगों के लिए, जो उनके नेशनल्स के लिए, वो बहुत मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि हज़ारों अफ़गान जो हैं वो एयरपोर्ट के मुख्तलिफ रास्तों पर आज भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स अपनी मिलिट्री फ़्लाइट्स को तो ऑपरेट कर रहा है फॉरेन नेशनल्स को निकालने के लिए, लेकिन अभी तक सिविलियन फ़्लाइट्स, जो हमारी संडे को 2 PIA की फ़्लाइट्स आई थी, उसके बाद सिलसिला सस्पेंडेड रहा। आज एक PIA की फ़्लाइट आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ को लेकर गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये इस चीज़ को मैनेज, इस सिचुएशन को मैनेज किया जाएगा और एयरपोर्ट आइंदा चंद दिनों के में अवेलेबल हो जाएगा। जो पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, एम्बेसडर साहब, मैं बहुत सी चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ। एम्बेसडर साहब, एम्बेसडर साहब बहुत सी चीज़ें आपसे समझना चाहता हूं। आप ग्राउंड पे हैं, आप काबुल में हैं, आप पाकिस्तान के पॉइंट मैन हैं, लेकिन मुझे जनरल अमजद शोएब साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं उनको भी डिस्कशन में लाना चाहता हूं। उनसे भी आप मेरे साथ रहिए। एम्बेसडर साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, वो मेरे साथ हैं और वहाँ की सूरत हाल बता रहे हैं कि वहाँ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, इस वक्त वो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वहाँ से एवैक्यूएशन का है, चूँकि हज़ारों लोग जो हैं वो एयरपोर्ट, जो काबुल एयरपोर्ट की सड़क पर वो बंद है, वहाँ पर उन्होंने पनाह ली भी है, वहाँ पे डेरे लगाए हैं उन्होंने, और लेकिन एयरपोर्ट का कंट्रोल जो है अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस के और वेस्टर्न जो एजेंसीज हैं उनके हाथ में है, वही उसको वहाँ से रन कर रहे हैं। मैं जनाब अमजद शोएब साहब कुछ मिलाऊँ। अमजद शोएब साहब, प्रेसिडेंट बाइडन को अमेरिका में भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ों के अलावा, कि कोई एवैक्यूएशन प्लान, अमेरिका जैसी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजिकल पावर जो थी, जिसके बारे में ये तस्वर किया जाता है कि हर चीज़, हर कंटेंजेंसी का उसके पास प्लान है, कोई एवैक्यूएशन प्लान भी उनके पास नहीं था। मैं कल फिगर देख रहा था, महज वो 2 दिन में कुछ 100 लोगों को वहाँ से निकाल सके। क्या आपको वजह समझ आती है? इतनी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री पावर, उसके पास तो फैसिलिटी होनी चाहिए कि लाख आदमी को एवैक्यूएट कर सके दिन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कुछ हुआ वहां पे इतना अचानक और इतने थोड़े वक्त में हुआ कि गालिबन
आउट ऑफ स्टेप हो गए वो लोग जो समझ रहे थे कि हमारे पास काफी वक्त है और हम आसानी से इसको मैनेज कर लेंगे, कि थोड़े थोड़े करके लोग निकलते रहें। लेकिन ये आपने देखा कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल हैरान रह गया कि ये उनकी आर्मी जो तैयार की थी इतनी, उसने भी कोई मज़ामत ना की, आवाम ने कोई मज़ामत ना की। और आपको याद होगा कि पहले मलेशिया जो थी उन्होंने बड़ा काम किया था, तालिबान के खिलाफ बड़ी लड़ाई हुई थी, इस्माइल खान और अताउल्लाह नूर, दोस्तम वगैरह। आज ये लोग इकट्ठे नहीं कर सके, ये मलेशिया बना नहीं सके। नतीजा ये कि या भाग गया या सरेंडर किया। तो वो जो चीज थी, जब अवाम एक सिस्टम को, एक करप्ट सिस्टम को, एक करप्ट गवर्नमेंट को जो किसी के सहारे बाहर से जो गैर ने बना के रखी वहां पे उसको कबूल ना करें, तो फिर वो कोलैप्स करेगी चीज। लेकिन अमेरिकनों को ये ख्याल नहीं था, उनको पता था कि हमने पैसा वैसा काफी लोगों की जेबों में डाला हुआ है और ये अब फौज भी बड़ी तैयार की हुई है, तो एक मज़ामत होगी, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर लेंगे। और मज़ामत से गालिबन वो इसको डिस्टेबलाइज ही रखना चाह रहे थे, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसलिए जब आप आउट ऑफ स्टेप हो जाएं तो फिर सिस्टम तो आपका तैयार नहीं था, नेचुरली ये फिर उनको ये मुश्किलात आई। सिस्टम उनके लिए तैयार नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। जनरल अमजद शुएब का भी यही ख्याल है कि अमेरिका तैयार ही नहीं था, उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। वापस आता हूँ एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब की तरफ। एम्बेसडर साहब, आपसे मेरा सवाल ये था जो आप बताना आपने शुरू किया कि तालिबान ने हुकूमत कायम नहीं की है, प्रेसिडेंट अशरफ गनी की हुकूमत डिसअपीयर हो गई है, वो यूएई में बैठे हुए हैं, मुलाकातें हो रही हैं, काबुल को रन कौन कर रहा है? कानूनी तौर पे काबुल की इस वक्त गवर्नमेंट का स्टेटस है क्या? ब्यूरोक्रेसी किससे अपने अहकामात ले रही है? ज़ाहिर है दफातर खुले हुए हैं, ख़वातीन भी आ रही हैं दफ्तरों में, लोग सड़कों पर भी निकल रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन कौन कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी इंस्ट्रक्शंस कैसे ले रही है? देखिए, बदकिस्मती से इस वक्त कोई बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत नहीं है। तालिबान ने बाकायदा अपनी हुकूमत अभी तक इस्टेब्लिश नहीं की है। गो के उन्होंने ये जिस दिन पिछली हुकूमत जब उनके प्रेसिडेंट चले गए थे यहाँ से, तो हुकूमत तहलील हो गई, तो लोगों ने अपने ऑफिस छोड़ दिए। हमारे एम्बेसीज़ और दफ्तरों के आगे से पुलिस की जो एस्कॉर्ट्स हैं वो चली गई। तमाम जगहों से पुलिस और दूसरे जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं वो चले गए, तो एक वैक्यूम आ गया। अब तालिबान ने आने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ, चूँकि मैं कल बाय रोड आया हूँ तोरखम से जलालाबाद तक, तो मैंने देखा कि उन्होंने सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ तो संभाल ली हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन और उन्होंने ये अर्ज किया है, ये अपील की है कि लोग अपने नॉर्मल बिजनेसेस भी जारी रखें, लोग दफ्तरों में भी आगे काम शुरू करें। कुछ जुज़वी तौर पे काम तो शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादातर काम बंद है। लोगों को ये भी अभी श्योरिटी नहीं है कि उनको तनख्वाहें किस तरह तालिबान अदा करेंगे या अगली हुकूमत अदा करेगी। तो इसलिए काफ़ी जो आप ये समझें कि ज़रा गैर यकीनी सी सूरत हाल है, और अगले चंद दिनों में इस ट्रांजिशन के अमल को पीसफुली मुकम्मल करना तालिबान के लिए, इन कोऑर्डिनेशन विद जो यहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अब्दुल्ला हैं, हामिद कारज़ई हैं, या दीगर कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं नॉन पश्तून कम्युनिटीज़ के, उनके साथ मिलकर इस प्रोसेस को आगे ले जाना होगा, वरना ये गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रा ख़तरनाक भी हो सकती है, कयास हो सकता है। क्या वजह है कि अफगान तालिबान जो विक्टोरियस हैं, उनकी फोर्सेस पूरे अफगानिस्तान में हैं, आपने रोड पे सफ़र किया, आप सेफ्टी के साथ पहुंच गए हैं, तो जो इनके पास कंट्रोल फिजिकल है वो हुकूमत नहीं बना रहे, उसमें जल्दी नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है एम्बेसडर मंसूर खान? मेरे ख्याल में चूँकि उनकी ज़्यादातर लीडरशिप जो है सियासी लीडरशिप बेस्ड थी दोहा में, जो कि मज़ाकरात में थी। अभी गुज़िश्ता हफ्ते ही हमारी दोहा में एक एक्सटेंडेड ट्रोइका की मीटिंग हुई थी, जहां डॉक्टर अब्दुल्ला भी थे और मुल्ला ब्रादर भी, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। लेकिन इन द मीन टाइम ये डेवलपमेंट्स हो गई, तो अब वो लीडरशिप सारी इकट्ठी हो रही है। तालिबान की लीडरशिप डिसाइड करेगी कि उन्होंने किस तरह से ट्रांजिशन में जाना है और किस तरह से दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को एंगेज करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रही है। हम भी एक्सटेंडेड ट्रोइका में, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, इसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। यूएस, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, एक्सटेंडेड ट्रोइका। तो हम भी इसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ से किसी किस्म के केओस या किसी किस्म की बदअमनी या किसी किस्म की सिविल वॉर और खूनरेजी की तरफ हालात ना जाएं।
एम्बेसडर साहब मेरे साथ रहिए, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑथर जनाब जाहिद हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। मैं आपका पीस भी देख रहा था जो आपका गालिबन आज ही छपा है, वो भी मैंने देखा आपका पीस। आपको साथ ही आप तक भी ये खबर पहुंची होगी कि अफगानिस्तान के जो रिजर्व्स थे, जो फंड्स थे, जो पैसे थे, जो डॉलर अमाउंट थे, वो तो अमेरिका के फिजिकल पोजेशन में है, तकरीबन $9 बिलियन। वो अगर इस हुकूमत को, अभी तो हुकूमत बनी भी नहीं है, लेकिन इस हुकूमत को अगर ये सरमाया और ये पैसा नहीं मिलेगा, इस हुकूमत ने ज़ाहिर है पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाहें देनी है, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को तनख्वाहें देनी है, तो आप समझ रहे हैं कि अमेरिका के हाथ में क्रंच है कि वो तालिबान को मजबूर करेंगे क्या करना है? नहीं, देखिए ये तो बात सही है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बावजूद इसके कि तालिबान ने एक लिहाज से जो है कामयाबी हासिल की है, उनका तमाम बड़े शहरों पे जो है कब्जा है, लेकिन देखें एक लिहाज से जो है आपका जब फौजी इसमें आप मिलिट्री कार्रवाई के जरिए आप कब्जा तो कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी हुकूमत करना जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में जहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा डिवीज़न मौजूद है, 20 साल से जो है एक ऑक्यूपेशन भी थी वहाँ पे, और एक एथनिक जो है डिवीज़न भी है, सब कुछ है, तो वहाँ पे आसान नहीं होगा कि तालिबान अपनी हुकूमत सिर्फ बना ले। उसके अलावा और भी चीज़ है कि देखें अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है, चाहे कोई भी हुकूमत हो, इससे पहले भी हुकूमत थी, उसकी जो है जितनी भी एक लिहाज से पूरा बजट ले लें आप, 90% है उनकी जो है तमाम ज़रूरियात जो हैं इक़्तिसादी, वो सब की सब जो है बाहर की एड से आती थी। तो तालिबान के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि कोई आइसोलेशन में वो अपनी हुकूमत चला सके। और मेरा ख्याल ये है कि और इनके लिए ख़ुद भी ज़रूरी है कि एक पायदार हुकूमत, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए उनको दूसरे लोगों से भी बातचीत करनी पड़ेगी। और ख़ुद जो है तालिबान जो भी कहते हैं, और मेरे ख्याल इंटरनेशनल प्रेशर भी है हर तरफ से, सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, जैसे अभी ट्रोइका प्लस की बात आ रही थी, उसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, तो इन सब की तरफ से एक ही बात आ रही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि जब आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए ज़रूरी है कि तमाम इन शराइत को ही पूरा किया जाए, तो अब ये बात इस किस्म की जो आपने बात की है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसको फ्रीज कर दिया गया है, तो ये भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना ये है कि तालिबान किस तरह से इन चीज़ों को काबू करते हैं। और मेरे ख्याल ये कि अच्छी खुशाइंद बात नज़र आती है कि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए हैं दूसरे लोगों के साथ भी, और इनको पहली जो इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, उसमें तमाम लोगों को शरीक करना। इस गवर्नमेंट को इंटरिम क्यों कहते हैं आप? इंटरिम का लफ्ज़ तो होता है कि वक्ती आर्जी गवर्नमेंट। आप क्या समझते हैं इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएगी? ये तो एक गवर्नमेंट होगी जिसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोग भी होंगे। बात यह है कि जो भी एक लिहाज से जो लेजिटिमेसी किसी गवर्नमेंट की होती है, उसकी कोई ना कोई एक वो होती है, मसलन ये कि इंटरनेशनली अगर आपको रिकग्नाइज करेंगे तो आपकी ये सवाल बहुत पैदा होगा कि आपकी लेजिटिमेसी क्या है। सिर्फ ये था कि आपने कब्जा कर लिया है आसानी के साथ काबुल पे भी या दूसरे शहरों पे, वो काफ़ी वो नहीं होती है इस वक्त जो है। तो और जब आप खुद कहते हैं इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी आपको हुकूमत बनानी पड़ेगी जो फिर बाद में ये तय कर सकती है कि क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, जिसमें जो है आइंदा हुकूमत जो है बननी या इलेक्टेड हुकूमत होगी या किस तरह से होगी, वो तमाम चीज़ें करनी पड़ेगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जाहिद मेरे साथ रहिए, पाकिस्तान के एम्बेसडर ऑन ग्राउंड मंसूर अहमद खान साहब भी मेरे साथ हैं। मैं वापस अगर जनरल अमजद शोएब साहब की तरफ आ सकूं। जनरल साहब, हम नई चीज़ें सीख रहे हैं, रोज़ ही नई चीज़ें सीखते हैं पाकिस्तान में लोग, और ख़ुद यानी वो सोच रहे हैं कि एक जंग हो गई, जंग के बाद जो है फतह हो गई, तालिबान को कामयाबी अल्लाह ने दे दी है, लेकिन शायद तालिबान को एहसास है कि अमेरिका की प्लांटेड गवर्नमेंट से लड़ना बंदूक के ज़रिए और काबुल पे फतह करना काबुल को, वो शायद आसान था। अब इस ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में जिसमें पैसे अमेरिका के पास हैं और IMF भी है और वर्ल्ड बैंक भी है और ये सब चीज़ें हैं, और वहाँ से कर्जे लेने हैं, डेट लेने हैं, तनख्वाहें देनी है, नहीं दे सकेंगे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। शायद ये ज़्यादा मुश्किल काम है, यानी काबुल फतह करना आसान था, ये ज़्यादा मुश्किल है आगे जो है। जी बिल्कुल, इस वक्त दो ज़रूरियात हैं। एक तो सारी दुनिया की डिमांड है कि एक कंसेंसस से इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, जिसको टाइम लगेगा, वो मुज़ाकरात के जरिए बनेगी। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि डे टू डे काम चलाना है। आज कौन, आप जैसे पूछ रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को कौन दे रहा है इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वो भी कोई सेटअप चाहिए। लिहाजा ये एक आर्जी हुकूमत तो बनानी इनकी इमीडिएट जरूरत होगी, वो बनाए और उसके जरिए काम चलाएं। और ये जो इकोनॉमी का किस्सा है,
ये इनके लिए रोज बरोज शदीद होगा, क्योंकि उसमें अमेरिका के पास यही लेवरेज है। इसमें हमें ये देखना है कि अमेरिका और भारत के अज़ाइम हैं क्या अल्टीमेटली, जब वो निकले हैं क्या वो वाकई सीरियस थे और सिंसियर थे कि यहाँ पे हमने एक स्टेबल अफगानिस्तान छोड़ के जाना है ताकि चाइना वहां पे फायदा उठाता रहे, या वो सीरियस नहीं थे कि ये छोड़ के जाएं इस तरह के ये लड़ते मरते रहे और इंस्टेबिलिटी रहे ताकि चाइना ना यहाँ आ सके। और आज अचानक ये हो गया कि उनको स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है। जो अगर वो स्टेबिलिटी को, इस स्टेबिलिटी जो मुज़ाकरात के जरिए शायद आ सकती है, उसको अगर वो रोकना चाहें ताकि चाइना फायदा ना उठा सके, तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं क्या? उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स दो तरह के हैं। एक तो ये हैं कि वो जिस तरह उन्होंने रिजर्व बंद किए हैं, इसी तरह वो उनके लिए और जो इकोनॉमिक इनकी हैं अपॉर्चुनिटी, उनको रोके, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन थे। और दूसरा ये है कि वहां पे जो उनके लॉयलिस्ट थे, जो उनकी प्रॉक्सीज थी, उनको दोबारा कांटेक्ट करें और उनकी जेबों में पैसा डालना शुरू करें, क्योंकि अफगान सोसाइटी जो पिछले 20 साल में हमने डेवलप की और देखी है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन पे चलती है। वहां पे वे ऑफ लाइफ बन चुका है करप्शन। नतीजा ये कि ये बड़ा आसान होगा किसी के लिए बाहर से कि वो वहां पे अपने कुछ पुराने लॉयलिस्ट को दोबारा खरीद के, तो कंसेंसस ना होने दे, यहाँ पे एक एग्रीमेंट ना बन सके और कंसेंसस गवर्नमेंट ना बन सके, तो वो फिर टूल पकड़ेगा, फिर वो आपको इकोनॉमिकली। वेरी इंटरेस्टिंग। जनाब मुझे एक ब्रेक लेनी है, जनाब जोशेफ भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान एम्बेसडर जो इस वक्त काबुल में है, जनाब मंसूर अहमद खान साहब भी मेरे साथ हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और राइटर ऑथर जाहिद हुसैन साहब भी मेरे साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि काबुल को फतह करना शायद इतना मुश्किल नहीं था जितना काबुल को चलाना मुश्किल होगा तालिबान के लिए। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूँ पाकिस्तान के एम्बेसडर जनाब मंसूर अहमद खान साहब के पास, जो इस वक्त काबुल में है, पाकिस्तान के पॉइंटमैन है। मंसूर अहमद खान साहब, क्या आपको, ज़ाहिर है आप एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आपका स्टाफ है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आपको लगता है कि जो तालिबान ऑन ग्राउंड है उन्हें एहसास है कि काबुल को फ़तह करना एक चैलेंज था, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज काबुल को गवर्न करना है, फाइनेंस मैनेज करना है, लोगों को साथ लेके आना है, तनख्वाहें देनी है, चलाना है, वरना इंस्टेबिलिटी हो जाएगी? कोई ऐसी फीलिंग उनके अंदर है, उनको अंडरस्टैंडिंग है इसकी? जी देखिए, हम कोई तकरीबन गुज़िश्ता 2 साल से एक जो पीस प्रोसेस में तालिबान की लीडरशिप के साथ एंगेज थे, ट्रोइका प्लस के थ्रू भी और दीगर फोरम भी थे, तो वहाँ पे जो बातचीत होती रही उसमें तालिबान की लीडरशिप ने बड़ी वाज़ेह तरीक़े से ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि वो इस दफ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट और इन सारे नॉर्म्स के साथ चलेंगे किसी सियासी मुफाहमत की तरफ, एक इंक्लूसिव सिस्टम की तरफ। अब ये वक्त है जो कि इन चीज़ों को ग्राउंड पे ट्रांसलेट करने का है, क्योंकि तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी इन जो कुछ अफ़गानिस्तान में होगा उसको ऑब्जर्व करेगी और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान के फ्यूचर के ऊपर एक हतमी फैसला लेगी। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है कि एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल ट्रांजिशन, या जिसे आप इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे थे, उसे कोई भी नाम दे लें, ट्रांजिशन हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, वो साल की हो या 2 साल की हो, उस पर अफ़गान फ़रीक़ैन को एग्री करना होगा और तालिबान का उसमें एक अहम रोल होगा। ये बात जो हमारी इस अफ़गान पीस प्रोसेस में इंटरेक्शन होता रहा, ये बात सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अफ़गान पार्टीज़ का इत्तफ़ाक़ नहीं है, तो ग़ालिबन उनको एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को निगोशिएट करना पड़ेगा। तो वो इस साल 2 साल की जो ट्रांजिशन होगी उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी निगोशिएट होगा और डे टू डे गवर्नेंस भी होगी। तो इसके बाद जो फ्यूचर का जो स्ट्रक्चर है उसके खदो खाल वाज़े होंगे। लेकिन आजकल के दौर में पाकिस्तान का मैसेज भी तालिबान को भी और दूसरे अफ़गान लीडर्स को, साइड्स को भी यही है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि इस तारीख़ी मौके को अफ़गान क़यादत, ख़्वाह वो अफ़गान तालिबान हो या दूसरे अफ़गान लीडर्स हों, ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा जाहिद हुसैन साहब,
एक ज़रा मुख्तलिफ किस्म का सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि गुज़िश्ता रबा सदी में हमने देखा, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे में, कि जहाँ भी इस्लामिस्ट किस्म की हुकूमत आती है जो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी नज़रिए की बात करती है, मगरब से हट के एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी रखती है टेबल के ऊपर, वो पॉपुलर ही क्यों ना हो, जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान का है, उसके बाद मोहम्मद मुर्सी की जो हुकूमत आई वो तो इलेक्टोरल प्रोसेस के ज़रिए आई। एक पॉइंट में उनके पास 63% उनके पास वोट भी था। उन्होंने बड़ी कोशिश की अमेरिका को साथ लेके चलने की, उन्होंने इसराइल को साथ लेके चलने की कोशिश की, इसराइल की खातर उन्होंने सिनाई में ट्रुप्स भी डिप्लॉय किए, लेकिन जो मगरब का शक था और जो वेनम था उसमें कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने उनको नाकाम बनाया और फाइनेंशियल प्रिंसिपल यूज़ किया, उनको फंड्स दिलाए कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हो गई चूँकि उनके पास पैसा नहीं था। उसके बाद आपने देखा कि मोहम्मद मुर्सी जो हैं उनकी अदालत के एक कटहरे में उनकी डेथ होती है। तो यहाँ पर आपको लगता है कि तालिबान कुछ भी करें इनको मगरब एक्सेप्ट करेगा? नहीं, मेरे ख्याल यहाँ पे वो बात जो है जो आप जो कह रहे हैं, जो मिसालें दे रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। अच्छा, क्यों नहीं होती? देखिए, एक बात साफ है। देखिए, असल बात ये है कि हम छोड़ दें कि मगरब क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करें कि जो है जो अफगानिस्तान की अपनी जो सूरत हाल है, यानी एक तकसीम हुई भी है 14 साल से, जो एक जंग की सूरत हाल है, तो उसमें जो है वो आपको अफगानिस्तान में, और एक और भी हकीकत है अफगानिस्तान की, वो इथनिकली बहुत डिवाइडेड कंट्री है। तो आपको जब तक कोई ऐसी मुस्तहकम, और ख़ास तौर पे एक इतनी तवील जंग के बाद अगर आप कोई आती है इंतज़ामिया, तो उसको कम से कम सारे लोगों की हिमायत हासिल होनी चाहिए, तो ही आप मुल्क को चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये भी हकीकत है कि आप जो है किसी मुल्क को जो है, ये तालिबान के लिए इसलिए बात नहीं हो रही है कि जो है वो एक कोई उनका जो भी उनकी सोच है, तो उसके मुताबिक तो खुद वहाँ के लोगों को भी खदशात मौजूद है ना। जो अगर फर्ज कीजिए कि हम इसको सिर्फ अपने अफगानियों के भी लिहाज से जो बात करते हैं, क्या वो ऐसे निज़ाम को कबूल करेंगे जो आगे उनकी तरक्की के सारे रास्ते मजूम करे? आप मुझे बताइए कि जो है मैं वहाँ पे अफगानिस्तान में मैं कवरेज करता रहा हूँ। तालिबान के दौरान मैं तकरीबन आधा वक्त मेरा वहीं पे गुजरता था, मैंने तकरीबन तमाम फेजेस देखे। वहाँ पे उस वक्त ये था कि ठीक है, एक हद तक उन्होंने एक अमन की फिजा कायम कर रखी थी, लेकिन वो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। वहाँ पे मुल्क में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप मुझे बताइए कि आज के ज़माने में अगर उस वक्त ये कहा गया था कि टेलीविज़न भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं हो सकता है, यहाँ पे जो है कोई औरतों की तालीम नहीं हो सकती, मैंने खुद देखा था, ये हकीकत है, कोई अफसाना नहीं। आपको नहीं लगता कि ये जो तालिबान 2 है, जो नया तालिबान है, ये उस पुराने तालिबान से 1996 के तालिबान से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये इंटरनेशनल एंगेजमेंट के प्रोसेस के जरिए इसको पावर मिली? देखिए, सही बात है कि ये कहा जा सकता है कि मौजूदा जो क़यादत है उसको इतना एक्सपोजर भी मिला है, उनको पता है कि इंटरनेशनल कैसे डील किया जाए, वो दूसरे ममालिक के साथ करते हैं। लेकिन अभी ये देखना है कि जो उनकी एक लिहाज से जो बयानात हैं वो कितनी हद तक जो है अमल दरामद होता है। ये अब मैं उसको छोड़ देंगे साजिशें बाहर, सिर्फ अफगानिस्तान के अपने नुक्ता नज़र से देखें तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ पे लोगों को ये एहसास होना शुरू कर हो जाए कि उनके हुकूक किसी तरह से कम हो रहे हैं या उनके सामने कोई तरक्की का रास्ता नहीं है, तो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम जो सारा अपना जोर उस पर इंटरनेशनल लगा रहे हैं, वो अपने मुल्क की हकीकत भी देखें। तो मसला ये है कि अगर फर्ज किए कल से आपने ये तो कहा है कि हम औरतों की तालीम को रोकेंगे नहीं, लेकिन इसको अभी प्रैक्टिस में देखना पड़ेगा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसको प्रैक्टिस में देखना पड़ेगा। मेरे साथ रहे, मैं जनरल साहब को इसमें लाऊं। जनरल साहब, मुझे जो एक मतलब गुमान या शक गुजरता है एक, वो ये है कि मोहम्मद मुर्सी की जो हुकूमत थी मुस्लिम ब्रदरहुड की, वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस से आई थी। वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, तालिबान के साथ कोई कंपैरिजन उनका नहीं है, उनकी बड़ी डीप इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन थी, उनके साथ बहुत बड़ा अमेरिका बेस मगरब बेस डायस्पोरा भी था, और उन्होंने बड़ी कोशिश भी की कि उनको एक ब्लेसिंग या उनको लेजिटिमेसी मिल सके। लेकिन मगरब का वेनम इतना शदीद था, कॉप्टिक चर्च को उन्होंने यूज किया, सेक्युलर्स को यूज किया, अल्टीमेटली फौज को यूज किया। तो यहां तालिबान जो है इनको फायदा ये है कि ये फौज खुद हैं, ये खुद मिलिट्री स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको एक्सेप्ट करेगा मतलब जो इनके एनिमीज हैं? देखिए, यहां पे अमेरिका जो है, मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो स्टेबिलिटी नहीं करना चाहेगा। तभी बहुत सारे इश्यूज उन्होंने खड़े करके तो ये कहा है जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है या राइट से रिलेटेड है या और इश्यूज हैं गवर्नेंस के, उनको उन्होंने रखा है कि जी हम इसको देखेंगे, वॉच करेंगे। और आपको पता है जैसे पाकिस्तान में अभी अंडर एज रिक्रूटमेंट का उन्होंने कैसा खड़ा कर दिया, तो क्या वो सच था, दुरुस्त है? वो दुरुस्त नहीं है।
लेकिन ये कि वो इस तरह का इशू बना के तो वो आपको स्क्वीज कर सकते हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि वो वहां पे कोई ना कोई इशू बना के एक तो रिकग्नाइज नहीं करेंगे इस गवर्नमेंट को, दूसरा वहां पे इंसर्जेंसी के लिए या ये जो आप कह लीजिए कुछ पावर सेंटर छोटे मोटे इधर उधर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहां से रेजिस्टेंस होता रहे और इस गवर्नमेंट की रिट पूरे इलाके पे ना हो। नतीजा ये कि जो वहां पे चाइना या कोई और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये उनके लिए मुमकिन ना हो कि वहां पे वो स्टेबिलिटी उनको ना मिले जिसके जरिए वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर सकें। और ये सूरत हाल बनाने में कोई इतना मसला नहीं है। जो लोग भागे हुए हैं आप उनको पकड़ के बाहर एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना सकते हैं। जो आपके पास रिजर्व 9.5 बिलियन आपने रोके हुए हैं, आप कह सकते हैं कि ये इलेक्टेड लोग थे, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो बाहर है उसको हम दे देंगे, और तालिबान जो है वो अनइलेक्टेड है उनको नहीं देते, इनकी कंसेंसस गवर्नमेंट नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि बाहर से फिर आपको शैतानियत और वहां पे शोशा खड़ा करना या वहां पे कोई सिविल वॉर का माहौल पैदा करना वो कोई मुश्किल नहीं। अमेरिका के ज़हन में था कि निकलेंगे तो यहाँ बहुत बड़ी सिविल वॉर होगी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मुझे जरा लास्ट में कमेंट लेने दीजिए एम्बेसडर साहब का। जनरल साहब बड़ा भरपूर आपने समझाया है। क्विकली मंसूर अहमद खान साहब का, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं इस वक्त अफगानिस्तान में, वहां सूरत हाल को देखें। एम्बेसडर साहब, बेसिक चीज तो इकोनॉमिक जो है फंड्स हैं, जो अगर डिप्लोमेटिक लेजिटिमेसी नहीं मिलती मगरिब की तरफ से, इकोनॉमिक फंड्स नहीं मिलते अमेरिका और उसके एलाइज की तरफ से, तो क्या जो और रीजनल कंट्रीज हैं रशिया, चाइना, ईरान वगैरह जो है पाकिस्तान समेत, ये कुछ इतनी इनको फाइनेंशियल मदद दे सकेंगे कि ये सर्वाइव कर सकें? देखें कि तमाम अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं 1990 से एक इस दफ़ा मुख्तलिफ सूरत हाल है कि तमाम हमसाया ममालिक एक पेज पर हैं और वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट आए, खा वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो या दीगर 3 सेंट्रल एशिया के ममालिक हों, इसके अलावा रशिया और मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स भी वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट आए। इसलिए डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी तो बहुत ज़रूरी है, और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लाने के लिए और अगर हम अपने इस खित्ते को इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की तरफ, रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो अफ़गानिस्तान में सिस्टम आएगा उसका इंक्लूसिव भी होना बहुत ज़रूरी है, उसका इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक भी होना उसका ज़रूरी है, उसमें ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए लेजिटिमेसी आ सकती है, और कोशिशें भी अफ़गानिस्तान के तमाम नेबर्स की इसी जानिब हैं और एक्सटेंडेड ट्रॉयका की भी कोशिशें इसी जानिब हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के एम्बेसडर जनाब मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ बात कर रहे थे। जाहिद हुसैन साहब ने भी बात की, जनरल जोशुआ साहब भी मेरे साथ थे, और जैसे कि एम्बेसडर साहब ने कहा वहीं पे बात खत्म करता हूं कि पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट यह है कि अफगानिस्तान में अमन हो, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वहां इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, इकोनॉमिक इंटेग्रेशन हो, यहाँ सड़कें हों, मोटरवेज हों, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, कराची की पोर्ट के दरमियान में रास्ते हों। और पाकिस्तान, फ़र्क यह है 1990 की सियासत से कि पाकिस्तान, चीन, रूस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और ईरान सब जो हैं वो एक नुक्ते के ऊपर हैं कि हमें एक स्टेबल प्रॉस्परस अफगानिस्तान चाहिए, जिसके लिए एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए। मगरब के इंस्टीट्यूशंस क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान क्या चाहता है, हमें क्लियर नहीं है स्टेज पे बिल्कुल भी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।